بندہ اپنا نام رب رکھ لے، وہ بندہ اپنا نام اللہ رکھ لے، کسی کا نام اللہ نہیں، کسی کا نام رب نہیں، صفاتی نام رکھ لو، ذاتی نام نہیں دیا کہ یہ بے حرمتی ہے، بے قدری ہے، ذہنوں میں نہیں آنے دیا، کسی کے ذہن میں آیا ہو میں رکھ لوں، وہ براستہ ہے دل چلتا ہے، براستہ ہے دماغ چلتا ہے، ارے جب وہ چاہتا ہے تو بات کہہ دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو چھین لیتا ہے۔ اللہ کسی کا نام نہیں بندے کا، رب کسی کا نام نہیں، لیکن قربان جائیں اس نے کس کا نام رکھا ہے؟ رب کس کا نام رب رکھا ہے؟ اس نے کہا جا تمہیں دیا، کسی کو نہیں دیا اپنا نام، تیرے ماں باپ کو دے دیا میں نے رب اپنا نام، وہی بھیجی، قرآن کے اندر وہی ہے، فرمایا کما ربا یعنی صغیرہ، صغیرہ چھوٹے کو کہتے ہیں، فرمایا کما ربا یعنی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں، صغیرہ چھوٹے رب، قرآن کی آیت ہے، کما ربا یعنی صغیرہ، یعنی اللہ نے اپنا نام رب کسی کو نہیں دیا، تمہارے ماں باپ کو دے دیا ہے، فرمایا تمہارے رب ہیں، زمین پر پالتے ہیں، میں بڑا ہوں جو میں پالتا ہوں، لیکن یہ ربا کما ربا یعنی صغیرہ، آیت قرآن، حدیث بھی نہیں کہ ہم سائڈ پہ ہو جائیں، یہ تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں، تو پھر رب کا کتنا احترام کرنا چاہیے؟ ہم مانتے ہی نہیں، ساری زندگی انہیں سے گلا رکھتے ہیں، تو پھر جو رب سے گلا رکھے، پچھلے کو گلے تھے یا نہیں مانیے تو توبہ کرو، آگے سے یوں سمجھو کہ ہم رب ہم اس کی بارگاہ میں اس کی بات مان رہے ہیں۔ قرآن کے اندر ربا یعنی لفظ رب کہا ہے اللہ نے، ہمارے ماں باپ کو رب کہا ہے، مولوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں پالنے والے، رب بھی پالتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور جب رب نے ان کو رب کہا ہے تو کون سا ادب لے کے آیا ہوا ہے؟ مولوی کہتے نہیں پالنے والا، وہاں سے رب تو ہے ہی پالنے والا، لیکن اللہ نے یہاں پالنے والا نہیں کہا، اللہ نے لفظ اپنا نام دیا ہے، کما رب یعنی صغیرہ، تمہارے رب ہیں، صغیرہ چھوٹے رب ہیں، زمین پر تمہیں پالتے ہیں۔ آج کا میسج یہی جوانوں کو، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرو، احترام کیا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے احترام کیا کرو، اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو آج تمہاری سماج کے مطابق تمہاری عقل کے مطابق نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ان کا ویژن بہت بہت دور کا ہوتا ہے، وہ بات بہت دور کی دیکھتے ہیں، وہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن غیر پڑتا ہے بیچ میں، وہ کہتا ہے ان کی تو سمجھ نہیں آ رہی، میری آئے گی، تیرے ماں باپ ہے نہیں تیرے خلاف، تیرے ماں باپ تیرا سوچتے ہی نہیں، تیرے ماں باپ تیرے بارے میں کرتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے اے سچا ہے، حالانکہ وہی دشمن ہوتا ہے اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، حالانکہ وہ سچ جھوٹ ہوتا ہے، وہ جو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی وہ سچ ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ جو بات کرتے ہیں سمجھ نہ آئے، پیر مرشد ماں باپ جو بات کریں وہ سمجھ نہ بھی آئے تو مان جایا کرو، اس کے اندر تمہاری بہتری ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انعام ہوتا ہے جو کسی موڑ پہ جا کر ظاہر ہوتا ہے، تمہیں فائدہ دے گا، وہ فائدہ دے گا۔ ادب کیا ایک دوسرے کا، احترام کیا، ماں باپ کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، گھر اس کے گھر جو ہے وہ جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے، اللہ کیا کرے، اللہ تو پھر سب کا ہے، مالک کیا کریں، ہمارے پاس تو نہیں مال مطابق 2-4 لاکھ، ہم کیسے آئیں تجھے دیکھنے، کیسے آئیں؟ فرمایا ایسے آؤ کہ نہیں آ سکتے نا، تو پھر ایسے کرو کہ تم ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، نہیں آ سکتے تو تم ماں باپ کو محبت کی نگاہ، یہ فرمان رسول ہے، فرمایا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا۔ وہ کسی نے کہا حضور میرے تو ماں باپ مر گئے ہیں ہی نہیں، تو میں کیا کروں، مجھے کبھی کبھی یاد آتے ہیں، اور اس بات کے اندر ہے
ये जो मना करते हैं ना आप लोगों को कि कब्रों पे ना जाओ, हजूर को वो शख्स कह रहा है कि हदीस है, मेरे माँ बाप की कब्र जो है वो नहीं रही, मेरे माँ बाप की कब्र पानी में रुक गई है, ये नहीं पता कहाँ गई, लेकिन याद बहुत आ रहे हैं। हजूर ने फरमाया माँ बाप की कब्र पे चला जाए। ये कहते हैं कब्रों पे ना जाओ, हजूर हदीस के अंदर उसको माँ बाप की कब्र पे भेज रहे हैं। उसने कहा हजूर पानी में रुड़ गई है, तो फिर हजूर ने हदीस के अंदर क्या है फरमाया, आपने फरमाया दो लकीरें खींच जमीन पर, दो जमीन पर लकीरें खींचने के बाद एक लकीर को माँ की कब्र तस्वर कर ले, एक को बाप की कर ले और खड़ा हो जाए। ये हालत मजबूरी के अंदर लकीर है, वरना हुक्म तो यही है ना कि कब्रों पे जाओ, माँ बाप की कब्रों पे जाओ। रूह नहीं मरती, वजूद पर्दा करता है, रूह नहीं मरती, रूह कायम होती है, रूह उसी तरह एहसास भी रखती है, महसूस भी करती है। लेकिन कई मरतबा इस बात को समझाने के लिए, बात ज़हन में टिकाने के लिए मिसाल देता हूँ। आपके अंदर क्या है, पड़ा हुआ लाहौर में है, लुत्फ तो कराची के ले रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, अगर किसी से लड़ रहा है तो रो रहा है, कोई मार रहा है तुम्हें ख्वाब में, अगर तू कुछ चीज खा रहा है तो उसका लुत्फ भी वैसे ले रहा है, कपड़े पहन रहा है वो भी ले रहा है, गाड़ी चला रहा है वो भी ले रहा है, पड़ा हुआ लाहौर में है। वहां कौन सा वजूद तेरा चला गया, अरे वहां कौन सा वजूद तेरा चला गया, कहां से आ गया, पड़ा हुआ लाहौर में सोया हुआ है, बस तू सोया हुआ कब्र में होगा, वहां भी लिबास होगा और सफर होगा। जैसे ये मिसाल की है, आपके अंदर वजूद है, वो वजूद कराची में है, देख रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, कपड़े भी पहन रहे हो, खाना भी पका रहे हो, सैर भी कर रहे हो, समंदर भी देख रहे हो, सोए हुए लाहौर में, वहां कौन सा वजूद है, वजूद है भी, कौन सा वजूद है, तो ये निशानी है। बताया ये ना समझना कब्र में सो गए, वहां भी एक वजूद होगा, जैसे लाहौर में सोया हुआ था एक वजूद के साथ फिर रहा था, जहां जहां मैंने तुम्हें छोड़ा हुआ था, वहां पे अगर तू खुश है तो तू खुश है, अगर नाराज है तो वहां भी तकलीफ में है। इसलिए ये है कि तू अच्छे काम कर ताकि तुझे कब्र में सुला भी दिया जाए, तो फिर तुझे जहां छोड़ा जाए उधर छोड़ा जाए जहां तू खुश ही रहे। कहीं जंगल में ना तुम्हें छोड़ दे कि तू बता, जंगल में भी खा भी देखता है कि मुझे कुछ चीर रहा है, मुझे कुछ सांप डस रहा है, मुझे मार रहा है, जंगल में ना तुझे छोड़ दिया जाए, तुझे उधर ही छोड़ दिया जाए जहाँ रौनकें हों। हम सारी जिंदगी मज़ारों रौनकों में रहते हैं, बुजुर्गों के पास रहते हैं, सारी जिंदगी औलिया की बारगाह के उत्सव पे रहते हैं। इसलिए ये रूह इधर रौनकें देखती देखती जब उधर जाएगी तो उधर भी तो वही देखेगी, उधर भी तो वही देखेगी। इसलिए हजूर ने फरमाया, किसी ने हदीस से पाक है, किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कहा हजूर को क़यामत वाले दिन कहां से हम कहां होंगे, किधर होंगे, कहां से उठाए जाएंगे, कहां से उठेगा। आपने फरमाया वो वहीं से उठेगा, उसी के साथ उठेगा, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ उठेगा। हर शख्स अपनी मोहब्बत के साथ उठेगा और जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ उठेगा। इसलिए हम निस्बत मुस्तफ़ा भी रखते हैं, निस्बत पंचतकपाक भी रखते हैं, निस्बत औलिया भी रखते हैं। इसलिए ये है, ये सारी निस्बतें रखते हैं। अरे क़यामत वाले दिन उठेंगे, हमें सारी निस्बतें नसीब होगी, हमें सारी निस्बतें नसीब होंगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया हर बंदा अपनी निस्बत के साथ उठाया जाएगा। इसलिए ये है कि ये निस्बतें वहां भी मुयस्सर होंगी। इसलिए इधर अगर हम मान लेंगे तो उधर भी वो हमें मान लेंगे, अगर इधर हम नहीं मानेंगे तो उधर कौन माने। ये तो मोहब्बत को मोहब्बत है, कोई मोहब्बत करेगा, करोगे तो कोई करेगा, अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसलिए फरमाया मोहब्बत करो ताकि उस वक्त तुमसे मोहब्बत की जाए जब कोई करने वाला ना हो, जब कोई करने वाला ना हो वहां तुमसे मोहब्बत की जाए। तो सरकार ने इसलिए फरमाया कि मल्ला ला ईमान मोहब्बत अला, हदीस का जुमला है, ये टुकड़ा हदीस का है। फरमाया मल्ला ला ईमाना मोहब्बत अला, उसका ईमान भी नामुकम्मल है। मल्ला ला ईमान, ला का मतलब नहीं,
ईमान उसका मल्ला ला ईमाना मोहब्बत अला, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं जिसमें मोहब्बत नहीं। तो फिर वालिदैन के साथ मोहब्बत, ये नहीं है कि हम पीरों से मोहब्बत करते रहे और माँ बाप के गुस्ताख हो के पीरों के पास आए। वो कोई और पीर होगा जो कहेगा हाँ आ जा, माँ को जूती मार के आ जा। यहाँ कोई जूती माँ को मार के आएगा ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। या माँ का बेअदब होकर रसूल की बारगाह में चला जाएगा तो कुछ हासिल हो जाएगा। हुसैन पाक की बारगाह में जाएगा तो कुछ हासिल होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हुसैन को भी मानना है तो पूरे तकाजों के साथ मानना है, औलिया को मानना है तो तकाजों के साथ मानना है, रसूल को मानना है तो तकाजों के साथ, क्योंकि हुसैन का मानना भी रसूल का मानना है, औलिया का मानना भी हुसैन का मानना है। क्योंकि वो जो बीच में थॉट प्रोग्राम आ रहा है ना, वो सारा का सारा रब है, सारा का सारा रब है। इसलिए ये है कि इनको मानना तकाजों के साथ मानना। और जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सिर लाता उन्होंने तो शहादता हो गई, तो कहने लगे कि यार खेती करो, नमाज भी पढ़नी, नमाज पढ़नी तो खेती करो। उन पीछे से सिर लाई खड़े थे, अगा उनकी कर्म जा रहे थे। पिनवारी शाह साहब ने बड़ी दिलचस्प एक शेर लिखा है। आप फरमाते ने रेल रेल तो सिट कुरान दिता, रेल होंगी ना जिन्होंने तो कुरान रखा जाता है, तो बंदा सी तो इस वास्ते कहते हैं कि अमल बाद कर लो, पहले अहले अदब हो जाओ। अहले अदब होना बहुत जरूरी है। अदब वाले हो जाओगे तो थोड़ा अमल भी जड़ा है ना उनका अजर महफूज हो जाएगा। बंदा बैठा सी ना तो रेल ते कुरान पे पढ़े थे, इधरों अजान की आवाज आई तो जो उठिया भजया छेती नमाज पढ़ने वास्ते, तो जो पैर वजया ना रेल में तो रिढ़ दी गई, कुरान हो जा रिढ़ दी गई। और पीछे तो कुरान सुट के पे आंदा देगा भजदा पे नमाज अल। तो पीर वाले शाह साहब पे फरमाते ने रेड़ रेल तू सुट कुरान दिता, तेरियां कालियां नमाजा वालिया होए। और मैं पीछे से हुसैन को कत्ल करके पे आना है कि करन पे जाना। गल करने का मकसद है कि पीछे भी सही करके आओ तो फिर आगा जाओ। माँ बाप का अदब करो, बड़ों का अदब करो, हर उस अच्छी बात का अदब करो वो रसूल की, और रसूल की बात खुदा की है। अदब करो, एहतराम करो, नफरत न करो। रास्ते में किसी का दिल दुखा के नमाज जाओगे, मेरा फतवा है, मौलवी नहीं कहेगा मेरा फतवा है, वो नमाज कबूल नहीं होगी। रास्ते में किसी का दिल दुखा के जाओगे, आगे जाके नमाज पढ़ोगे, खुद को तो तसल्ली दे लोगे कि मैं नमाज पढ़ी है, ये मैं कहता हूँ वो कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह कहेगा पीछे दिल दुखा के आ रहे, आगे क्या करने आ रहे। रास्ते में हम सलाम ही नहीं लेते, सलाम का जवाब ही नहीं देते। खंदा पहचानी से मिलो। हुजूर फरमाते हैं कि ये भी सदका जारी है, लोग तुझे देख कर खुश हो जाएंगे। उन्हें बड़ा कुछ दे दिया कि तुझे उसने देख कर वो खुश हो गया। 100 बंदा तुझे दिन को मिलता है, खुश होता है तुझे देख कर, यार क्या बात है, दोबारा मिलने को दिल करे। हर वक्त चेहरे के ऊपर सख्ती, हर वक्त चेहरे के ऊपर कुरख्तगी, हर वक्त यूं नहीं। और नेकियां तो मुफ्त की पड़ी है। चेहरा ऐसे रख तुझे देख कर भी अगला खुश हो जाए। गुफ्तगू ऐसी करके तेरे साथ अगला इंतजार करे कि ये कब आएगा। ये वो काम है, ये वो नेकियां हैं जिसमें पैसे नहीं खर्च होते। यानी ये कब आएगा, देख इस अदा के साथ, देख इस तरह। हम अगले को देखते हैं तो यूं नजर आता है कि जैसे अगला सोच लेता है। ये कुछ नफरतें पैदा हो जाती है दिलों के अंदर। आप कहते हैं कि यार मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नफरत पैदा हो जाती है। वो अपने देखने का अंदाज देख कि ठीक है, अपनी बात समझने का अंदाज देख कि ठीक है, अपने बोलने का अंदाज देख कि ठीक है। कभी किसी ने दिल नहीं चीरा किसी का, आमाल से खबर होती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सूरत धोखा दे सकती है, सूरत धोखा दे सकती है, अरे सीरत धोखा नहीं दे सकती। सूरत धोखा दे सकती है, सीरत तुम्हारा किरदार
सीरत धोखा नहीं दे सकती, सूरत दूर कर सकती है, अरे सीरत करीब करती है। सीरत करीब करती है, दिलों को कोई नहीं देखता। एक मतलब एक शख्स आया ना हजरत अली करमुल्लाह वजह के पास, उसने कहा, उन्होंने सोचा कि यार नमाज पढ़ते हैं तो कभी कदा नहीं हुई, कदा करेंगे अली की नमाज। बज लग गए, तारीख के अंदर पता लग जाए कि अली ने भी नमाज कदा। वो गल ही ऐसी छेड़ी है, कोई गल का जवाब देंदिया है ना असर लग जाए। बदनीयत सन गल शुरू करती, उन्होंने ये नहीं सी पता जरा बाप उल इल्म है उन्होंने कौन हरा सकता है। हजूर ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। उसके बारे पे सोचते हैं हजूर का बोलना खुदा का बोलना। गल लैके आ गया अली, एक जानवर ने बकरी ने बच्चा दिता है, समझ नहीं आती उन्हें कुत्ते का बच्चा है या बकरी का है ना, तो उशाबे कुत्ता लगता है ना बकरी लगती है, तो की करिए उहदे बारे की मसला है। आप फितरत वाले पासे गल तोड़ी, आपने फरमाया उन्हें पानी पीने वेखो, अगर पानी लीक ला के पीता है तो बकरी जे, जे पानी चट के पीता है तो कुत्ता जे, कुत्ता पानी चट के पीता है, बकरी लीक ला के पीती। वो बद अजीब तो सन उन्होंने कहा जी वो भी वेख्या है, पर कुछ समझ नहीं आती, कोई लीक डाक भी ला जाता है, कोई चटन भी लग पैंदा है। मैं अच्छा है, चलो फिर उन्हें वेखो पेशाब करते हैं, अगर टंग लत चुक के करता है तो फिर कुत्ता जी, चारा टंगा से खलो के करता है, बकरी बकरी चारा टंगा से खलो के पेशाब करती है, कुत्ता लत चुक के करता है। उन्हें कोई पता नहीं लगता भी भजदा पुजदा कोई कर कुछ छड़ता है, कोई कम सानू समझ नहीं आन देता। आपने तीसरा तरीका दसिया, फरमाया छड्डो बकरियां, जे बकरियां तो अगे लग के अगे 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 टुरदा है तो फिर कुत्ता जे, कुत्ते का काम है बकरियां तो अगे अगे टुरना, जे बकरियां दे विच रह के टुरदा है तो फिर बकरी जे उन्हें कभी किसी विच वड़ जाता, किसी बाहर निकल आता, अली पा के सानू समझ नहीं ते आप कुत्ते सन। आपने फरमाया अली ने तुहाडा जानवर बचाया तो बड़ा, पर तुसीं नहीं बचन दिता। मैं बचाया तो बड़ा तुहाडा जानवर, पर तुसीं नहीं बचन दिता। ले आओ छुरी ते करो जिवा, जे ओजरी निकलदी जे ते बकरी जे, जे आंकड़ा निकलदी है ते कुत्ता। पर इस गल की खबर फिर छुरी फिर के ही लगी ना, इस गल की खबर छुरी फिरन से लगी, अगले फिर छुरी फेर देते हैं, पर जो छुरी फिर जाए तो कख नहीं रहिंदा, फिर कख नहीं रहिंदा जो छुरी फिरदी है, तो पहले ही टोटा के कहते रहते यार इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर। दिल जो है निकाल कर कोई नहीं देखता कि दिल में मोहब्बत है, अरे मोहब्बत तुम्हारे किरदार से समझ आती है। वो दिल को नहीं चीर के देखेगा कि तेरे दिल में मोहब्बत है, वो देखेगा तेरा किरदार कैसा है। और इन हस्तियों से मोहब्बत हो तो उनकी तालीमात पे भी अमल बहुत ज़रूरी है, उनकी तालीमात भी दूसरों की होती है। हमें ज़ात से तो मोहब्बत होती है, बात से मोहब्बत नहीं होती। और आशिक वही होता है जो महबूब की बात को फर्ज समझता है, महबूब की बात को फर्ज समझता है। इसलिए आप फरमाते तेरे बगैर कोई नहीं, तेरे बगैर कोई नहीं, कौन है जो तेरे सिवा तेरा मदावा करे और मुझसे नाराज ना हुआ कर, मुझसे नाराज ना हुआ कर। और मैं तेरा ही बंदा हूँ और तू ही मेरा खालिक है, नाराज ना हुआ कर। इस हालत के अंदर बैठकर ख्वाजा साहब ने ये कलाम सराइकी के अंदर लिखा। ये आप